Hello and good morning everyone. Welcome to Vidya Alankar classes, your one-stop solution for GATE examination. So if you are an EC student and you are appearing for GATE 2021 examination, then this video is meant for you only, and you should see this video till the end so that you can understand what should be your strategy for the last 21 days of this left for this examination, and what mistakes that you need to avoid so that you are successful in this coming examination. My name is Bansal, and I have been teaching students for last 10 years in this particular field of competitive examination in the technical sector, and based on my own experiences and the experiences of the past successful students, I'll be sharing with you the basic mantra that you should follow to get a good rank in the examination by following this revision strategy. So be with me till the end of the video, and don't forget to like, share and subscribe this channel of Vidya Alankar classes to get more important videos in the upcoming days. So basically what we will be dealing with is, since your examination is in the month of February, that is 7th of February in the afternoon session, the exam will be held for EC branch. So we will be discussing the schedule only for 21 days. Okay, so here is the schedule that we will be discussing. So let us get started. So I am giving this schedule from 15th of Jan you have to follow till 24th of February, that you must follow this particular schedule that I am sharing with you right now. Okay, so let's understand the schedule in detail. So now in the first 5 days, 15, 16, 17 and 18 and 19, okay, you should complete all these group A subjects that normally I say. So these subjects are those subjects that are very easy to score and that requires less effort. Normally the question will be somewhere in between 55 marks to 60 marks from this particular part only. Okay, so we will focus on this part first. So in the first 5 days you should complete your syllabus of this particular part. Now how you will be completing your syllabus? See, this is the last day, so I expect you all have made your short notes and you know which topics you are good at and which topics you need to work out. So that short notes revision needs to be done right now at this time, or your notebooks that you have prepared, then you should go through those notebooks and complete that content. तो इससे क्या होगा कि आपका रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, अब जो आप रिवीजन कर रहे हैं ये फाइनल रिवीजन होगा, अब आप हर रोज रिवीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑन 20 ऑफ जैन, ओके, ऑन 20 ऑफ जैन आप एक मॉक देंगे, और इसमें एक खासियत होगी, ये मॉक आप देंगे दोपहर 2 से बैठ के 5 बजे के बीच में। ओके, द मॉक टाइमिंग विल बी सेम एज द टाइमिंग दैट यू विल बी अपीयरिंग फॉर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, so that makes brain ready to be very active on those hours. Okay, and in the first half of your day what you can do कि इसमें से जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट होगा आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें कुछ बचा होगा तो उसको पढ़ सकते हैं। Now between 21 to 23, that is like 3 days. Okay, in those 3 days you should complete the syllabus of group B subjects. Now what are group B subjects? They are signal and EDC. They are the subjects in which you have to give average effort to get average marks. ठीक है, थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है कंपेयर टू ग्रुप ए सब्जेक्ट, और क्वेश्चन भी थोड़े टिपिकल आते हैं तो थोड़ा कम मार्क्स आता है यहाँ पर। बट सिंस देर आर 2 सब्जेक्ट्स ओनली, आई गिवन यू 3 days, इसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए बेस्ड ऑन शॉर्ट नोट्स, और जो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए और उसके बेसिस में आप अपना रिवीजन करिए, ठीक है। इतना करने के बाद यू हैव टू गिव द सेकंड मॉक अगेन ऑन 24 Jan, सेम टाइमिंग 2 to 5. ओके, रिमेंबर दैट ऑन 7th of February you will be giving your examination between 2 to 5 for EC branch. ओके, तो मॉक दीजिए, और उसको मैं FLT लिख रहा हूँ, मतलब फुल लेंथ टेस्ट, मॉक मतलब फुल लेंथ टेस्ट। ओके, आइदर यू गिव अ मॉक और यू गिव अ FLT, वट एवर यू हैव इन योर ऑप्शन। ओके, सो उसको भी फुल लेंथ वैसे 3 घंटा बैठ के आप दीजिए अच्छे से। नाउ these 3 days, what you see over here, this 3 schedule, these are your group C subjects. These are the subjects that are very typical in nature, very difficult to understand, very complex questions comes from this particular part, so you should give more time to this particular part. So I've given you 2 days each for each paper, for 2 days for analog, 2 days for communication, 2 days for EMT. अब आप इसमें अपना शॉर्ट नोट्स पढ़िए, आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो आपके छूटे हुए वो सब भी लगाइए, और कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट है उन सबको भी पढ़िए, सारा कंप्लीट कर लीजिए। नाउ आई गिव यू 1 लीव डे इन द मिडिल, ठीक है। 31 जनवरी मैंने आपको छोड़ दिया ऐसे कि आपका जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट है इन सारे सब्जेक्ट्स का, जो आपके टोटल सब्जेक्ट है उसमें से कुछ भी आपको कंप्लीट करना था, आप 31 को करिए, ठीक है। नाउ 1st of February
you sit between 9 to 12 one paper you solve of GATE 2020 and in the second half 2 to 5 you solve another paper 2019 GATE पेपर इसी ऐसे ही जैसे एग्जाम में आप देंगे, ठीक है। और अपना मार्क्स एनालाइज करिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आई एश्योर यू कि जितना मार्क्स आपको यहाँ आ रहा है इससे 5-10 ऊपर नीचे होंगे, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं। अगेन ऑन February 2, क्योंकि आपने यहाँ 2 पेपर दे दिए, February 2 को आप एक ही पेपर दीजिए, दैट इज मॉक 3, ओके, और यू कैन कॉल इट टू बी अ फुल लेंथ टेस्ट, ओके, ये इजिली आपको मिल जाएगा। अगेन बिटवीन 2 to 5, और ये देखिए आप देखिए कि आपको कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं। सिमिलरली ना गेट 2018-2017, मेरे ख्याल से 2017 में 2 पेपर थे, तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ द 2, ओके, और द टफर ऑफ द 2, और 2018 में एक ही पेपर था, सो यू कैन गिव अगेन 2018-2017 9 to 12 2 to 5 2 पेपर्स, ओके। अगेन ऑन 4th यू विल गिव वन मोर मॉक ऑन बिटवीन 2 to 5, ओके। और अब इतना देने के बाद कुछ टॉपिक्स आपको याद आएंगे कि अरे ये ठीक से नहीं हुआ, वो ठीक से नहीं हुआ है, या ये थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उन सब टॉपिक के लिए आप रिवाइज कर लीजिए वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिवाइज, ओके। सो वॉट यू विल डू, यू विल रिवाइज वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिवाइज ऑन 5th and 6th, और मैं तो बोलूंगा कि जितना कम पढ़ सकते हो उतना कम पढ़िएगा बिटवीन 5 to 6, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा थक जाता है और फिर एग्जाम में ऐसा परफॉर्म नहीं करेगा जैसा उसको करना चाहिए, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस शेड्यूल। These are the things that you need to avoid. This is the time, this is very important time. So आपको याद रखना है कि घंटे कितने भी आप पढ़िए, 10 पढ़िए, 12 पढ़िए, 14 पढ़िए, लेकिन आपको सोना 8-8 घंटे है हर दिन। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। लोग क्या करते हैं कि रात रात सोते नहीं है और फिर एग्जाम में जाके खराब परफॉर्म करके आता है, जबकि उनको आता है, तो वो उसके लिए। अगेन अवॉइड सोशल साइट, सारे सोशल साइट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब अवॉइड करिए। उसमें कुछ भी आपके लिए रखा नहीं है, आपको अपने पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और बस उसी में लगे रहना चाहिए। ईट हेल्दी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ऑयली, फ्राइड ये सब मत खाइए, क्या पता किसी समय आपकी तबीयत एक दिन भी खराब हो गई, तो ये डी टाइम है, एक भी दिन खराब होना आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर प्रोग्रेस एंड फॉर योर ग्रोथ, ठीक है। तो उसको अवॉइड करिए। अवॉइड टीवी अवॉइड करने से मेरा मतलब है कि आप वो फिल्म वगैरह देखना बंद करिए, ठीक है। न्यूज़ चैनल्स को मत फॉलो करिए, फालतू की बातें मत सुनिए। एट मैक्स अगर आपको कुछ चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए तो म्यूजिक सुनिए अपने मोबाइल में, और जो भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है, चाहे आपको क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, जो भी आपको खेलना पसंद हो उसको खेलिए, ठीक है। पर आउटडोर गेम्स खेलिए ज़्यादा हो सके तो, ताकि आप एक्सपोज हो। और हाँ, इसके सिवा एक और पॉइंट आप याद रखिए, हो सके तो रोज आप पार्क में जाके मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है इस समय में, और आपको शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतना आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आपको समझना पड़ेगा, सी ऑल द हार्ड वर्क हैज़ बीन डन बाय नाउ, ओके। आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, अब आपको क्या करना है, बस परफॉर्म करना है। और ये 15 दिन में आप कुछ नया मत पढ़ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नथिंग न्यू शुड बी रेड नाउ। अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया तो छूटने दीजिए, अगर कोई टॉपिक छूट गया तो छूटने दीजिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप उस दिन जाके क्या करने वाले हैं। देखिए, पढ़ने वाले तो हजारों बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन इस बार रैंक उन्हीं की आएगी जो एक्चुअल में उस दिन जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग ऑन टू द मेंटल स्ट्रेंथ, कि आप मेंटली कितना फिट रहते हो उस दिन, कि कितने चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हो, कितनी चीजें जो आपकी मेमोरी में उस दिन आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। प्लानिंग फेज इज डन, नाउ द एग्जीक्यूशन बिगिंस, ओके। तो उसके लिए आप दिमाग में लाइए शांति। तो शांति किससे आएगा आपका, इन सब पॉइंट से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा शांति आने वाली है, ठीक है। तो उस पर आप फोकस करिए, ना कि फालतू की बातों में कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या होगा, या अगर मैं फेल हो गया तो नेक्स्ट टाइम फिर से देना पड़ेगा, मेरा तो करियर डूब जाएगा। ये सब बात सोचने की नहीं है। दिस थिंग्स विल ओनली डिटोरिएट यू रेदर देन मूविंग यू फॉरवर्ड, ओके। तो बस अब आप शांति से रहिए और जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, बस इतना आप समझिए, ठीक है। तो फिर इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं, पर प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपके लिए हम और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाले हैं। हम आपके लिए कंसेप्ट और क्वेश्चंस के वीडियो लाने वाले हैं। हम आपके लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लाने वाले हैं। नेक्स्ट 15-20 दिन जो हमारे चैनल को फॉलो करेगा उनका हम गारंटी देते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।